سے ہماری وابستگی، ہمارا تعلق، یہی ہمارے لیے دنیا میں بھی اس کامیابی کا سبب ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بھی اگر کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے تو یہی اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے حامد محسن صاحب نے جو استقبالیہ تقریر پڑھی، طبیعت بڑی متاثر ہوئی۔ اس میں انہوں نے جو پوائنٹ پڑھے کہ پہلا یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، ہر ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ اس محفل کو نشستن و گفتن و برخاستن تک محدود نہ رکھیں کہ اس مجلس میں بیٹھے جمع ہوئے بول کے چلے گئے، بلکہ یہ کوشش کریں کہ یہاں سے آپ لے کر جائیں اور کوشش کریں کہ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے چلیں۔ میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں، جیسا کہ حامد صاحب نے کہا کہ ہر مسجد میں یا بڑی مسجد میں قرآن گھر قائم کریں، میں سب سے پہلے جامع مسجد میں قرآن گھر قائم کروں گا۔ قرآن جو سب کے لیے آیا، ہم نے سمجھا یہ صرف مسلمانوں کے لیے، کتنی بڑی غلط فہمی، اس سے زیادہ عظیم شان کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ خدا کا پیغام خدا کے بندوں کے لیے آیا اور آتا رہا ہے۔ قرآن اس سلسلے کی آخری کڑی، لیکن یہ غلط فہمی کسی اور کو نہیں، اس کے ماننے والوں کو ہے، اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو صرف اپنا قرآن سمجھا اور صرف مسلمانوں کو یہ سمجھا۔ اس سے بڑی عظیم شان کوئی غلط فہمی، اس سے بڑی کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا کو امن کا سندیش اور اللہ کا شکر سکھانے میں کامیاب ہونے کا سمے بہت اچھا نزدیک ہے۔ اس کے لیے ہم دونوں مل کر بہت قدم اور زیادہ سفر کرنا ہوگا۔ یہ دل سے دل تک، یہ ابھی ہم کو امریکہ اور چندر دور نہیں ہے، پرنتو پڑوسیوں کا دل بہت زیادہ دور ہے۔ اس دور کو مٹانے کے لیے، دل سے دل ملانے کے لیے ہمارا جو پریتن چلنے والا ہے اس کو اللہ کا منظوری آوشک ہے۔ قرض ہے، ایک فریضہ ہے جو امت پر عائد ہوتا ہے، اور جب تک دنیا کے تمام انسانوں تک قرآن پاک کی تعلیمات نہیں پہنچا دی جائے گی، یہ قرض ادا نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے کہ آپ کا انتخاب ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام میں آپ کو لگا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کام ہے جس سے خدا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے، آخری نبی کی بعثت اصلاً اسی کام کے لیے ہوئی، یعنی اللہ کی کتاب سے انسانوں کو واقف کرانا۔ جو غیر مسلم ہیں ان تک اسلامی دعوت اس قرآن کے ذریعے پہنچانا۔ آج مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں سلام سینٹر کو جو اخبارات میں پڑھتا تھا اور لوگوں سے سنتا تھا، اس کو آج میں اپنے چشمے ظاہری سے، اپنی نگاہوں سے میں نے دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک دین کے مرکز اور دین کے قلعہ میں آ چکا ہوں۔ دعوت دینے کے لیے سرکار مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے، اور تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کون آتا ہے اس کا انتظار نہ کرے، بلکہ ہم کو کس کے پاس جانا ہے یہ فیصلہ لیا جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور وہ آ کر قرآن شریف لینا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو گویا آپ نے ان کے اندر کی فطرت کو جگا دیا۔ ان کا نیچر جو ہے وہ اسلام ہے، ان کی ہیبٹ جو ہے وہ ان کا اپنا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ان کی ہیبٹ ہے۔ ہیبٹ کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، نیچر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کے نیچر کو جو سو گیا تھا اس کو آپ نے بیدار کیا ہے تو وہ آپ کے قریب آئے ہیں، اور یہ کام بلا لحاظ مسلک ہر طبقے کو اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ مت دیکھیں کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے۔
हमने ये सेंटर तामीर करने के बाद फिर ये अल्लाह ताला की तौफीक और ख्याल आया कि क्यों ना गैर मुस्लिमों में कुरान पेश करें। फिर जितने भी जमातें हैं पूरे हिंदुस्तान भर की, उनका तरीक़ेकार किस तरह से गैर मुस्लिमों में काम कर रहे हैं, तो उस तरीक़ेकार को हमने स्टडी किया। फिर सारी अमेरिका में और यूरोप में भी जितने भी तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें, वो गैर मुस्लिमों में किस तरह काम करते हैं, वो भी इसको भी स्टडी किए। फिर हमने सोचा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, बड़े पैमाने पर मालूम कराएं कि कुरान जो है आपकी ज़बानों में मौजूद है, इन तमाम ज़बानों में मौजूद है। इसको ये करने के लिए तमाम अखबार एडवर्टाइजमेंट दिए। इसमें उन्वान था कि क्या आप कुरान पढ़ना चाहें, तमाम मज़ाहिब के लोगों को दावत दी गई। तो इसमें सैकड़ों इंक्वायरीज आए। मौलाना यहाँ बेंगलुरु का पॉपुलेशन जो है 80 लाख से ज़ायद है, उसमें 20 लाख मुस्लिम्स हैं और 60 लाख से ज़ायद गैर मुस्लिम बसते हैं। तो अक्सर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर ये कुरान उनके तराजीम में मौजूद है। तो हमने होर्डिंग्स के जरिए रास्तों में किस तरह से होर्डिंग्स डालें, कंपनी के इश्तिहार की तरह। आर यू इंटरेस्टेड इन रीडिंग कुरान, ये लैंग्वेजेस में है और फोन कीजिए। ये कॉस्टली होर्डिंग्स भी होते हैं और ये दिन में भी और रात में भी अल्लाह के कलाम पढ़ने की तरफ दावत दे रहे हैं। फिर ये 10 शेल्टर्स में तो इसके जरिए सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों फोन आना शुरू हुए। तो रोजाना 150 फोन्स आते रहते हैं। तो उनको पहुंचाने के लिए हमने 2 विदाइयों को अपॉइंट किया, फिर 2 कार्स के जरिए वो पहुंचाते हैं। और अक्सर जो है 80% से जायद लोग यहाँ आकर खुद लेके जाते थे। ये और दूसरी बात, ये देने का तरीका जो हमारा ये है, एक तो ये जो है इस्लाम पर बुनियादी किताब है, ये कन्नड़ तर्जुमा है। फिर इसे कुरान है, इसमें कन्नड़ में, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब है कन्नड़ में। फिर गैर मुस्लिमों के जो मुख्तलिफ शुबहात हैं इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, ये सिलसिले में उनका अजाला तो इसके ऊपर है। ये प्रैक्टिकल जो है मुलाकात करके, और ये जो बुक है हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जा रही है। बहुत रेकमेंड भी किया है, जो भी कुरान लेते हैं वो गैर मुस्लिम ये किताब को आप हजारों नहीं पर लाखों में प्रिंट कराइए और मुफ्त तकसीम कीजिए। फिर इसके साथ ये DVD है। अच्छा अच्छा। और जो कुरान सुनना चाहते हैं तर्जुमे के साथ, उसकी है पूरा तर्जुमे के साथ। हाँ, तर्जुमे इंग्लिश में तमाम जबानों में। तो ये DVD में जो है ये हिस्ट्री ऑफ कुरान करके इस तरह नुज़ूल कुरान पर एक फिल्म बनाई। अच्छा। और उसको किस तरह से तरतीब दी गई, कंपेल कैसा किए, और उसमें हिस्टोरियंस गैर मुस्लिम और मुस्लिम वर्ल्ड के बेस्ट हिस्टोरियंस उनके बयानात भी हैं। और ये बड़ी इससे फिर ये 9/11 के बाद अमेरिका में जो वहाँ के इस्लामी तंजीम और कुछ अफराद ने मिलकर एक फिल्म बनाई। वो तमाम गलत फहमियाँ जितने भी इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थे, उसके अजाले के लिए ये फिल्म बनाई। ये दूसरी किताबों से ये बहुत असरअंदाज करती है। हाँ, ये देखने के बाद मुझे उलमा इकराम बताए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप तकसीम कीजिए। और हमारा तरीक़ाकार जो है, जिसको भी दे रहे हैं हम ऐसा ही मुफ्त नहीं देते, ऐसा ही नहीं देते थे, बट उनसे
में उनका डाटा लेते हैं, उनका एड्रेस और क्या क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्या दे रहे हैं, कौन दे रहा है, सब ये पूरा, इसका पूरा हमारे पास डाटा महफूज है। और कितने हमारे पास डॉक्टर्स लिए हैं, कितने इंजीनियर्स लिए हैं, कितने साइंसदान लिए हैं, पॉलिटिशियन, पुलिस पर्सनल, ये पूरा हमारे पास डाटा है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना हम ये पूरा जो है ये बॉक्स में डालकर हम तोहफतन दे दें। तो अल्लाह ताला ने उसको इस तरह बयान किया है, फरमाया है कि हमने कुरान को आसान कर दिया है ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं, नसीहत हासिल करें। आसान इसलिए इस तरह कर दिया है कि मामूली जहन का आदमी भी उससे फ़ायदा उठा सकता है, और बड़ा फ़लसफ़ी है, बहुत अक्ल दानिश वाला भी उससे फ़ायदा उठा सकता है। दोनों की रियायत रखी है। ऐसा नहीं है कि एक की रखी हो दूसरे की न रखी हो, कि सिर्फ अहले इल्म उससे फ़ायदा उठाएं, ऐसा नहीं है। अहले इल्म भी अपने इल्मी सतह पर उससे फ़ायदा उठाते हैं, और जो बेचारा जाहिल मामूली सलाहियत का है वो भी उससे फ़ायदा उठाता है। दोनों की रियायत उसमें रखी गई है। और कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नाज़िल इसलिए किया है कि लोग उससे फ़ायदा उठाएँ। कुरान मजीद तो अजीब चीज़ है, वो जो आसमान को ज़मीन से मिलाती, आसमान की चीज़ है ज़मीन में अल्लाह ताला ने भेज दिया है इंसानों के फ़ायदे के लिए। तो ये जितना ये लोग तक पहुंच सके ये पैगाम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दो चीज़ें हैं जिसमें सब मुब्तला हैं, एक माल की मोहब्बत और दूसरे बड़ा बनने के शौक़। ये दो हैं जिसमें सारे तमद्दुन के लोगों को सबको बिल्कुल खपा दिया। उसमें कोई किसी चीज़ से इतनी दिलचस्पी नहीं जितनी इस बात से पैसा बढ़े और हमारी इज्जत बढ़े, पैसा बढ़े इज्जत बढ़े, बस इसी में लगे हुए। तो ये ज़्यादा हासिल करने के शौक़ में हर चीज़ से गाफिल हो गए हैं। इंसानियत को संवारने के लिए और इंसानियत की नजात के लिए अल्लाह ताला ने यह कलाम हमको अता फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया कि उनकी सीरत को देख कर लोग मुतासिर होते थे और ईमान ले आते थे, और फिर अपना ऐसा कलाम अता फरमाया कि जो क़यामत तक लोगों की इस्लाह करता रहे और लोगों को नजात के रास्ते पर लाता रहे। अब आप ये खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं, तो इस निस्बत को देखिए, आपकी निस्बत कुरान मजीद से जो हो गई है, ये आपके लिए बड़ी सआदत की बात है, बड़ी सआदत की बात है। और इससे जिन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, उनकी इस्लाह होगी, उसमें आपको भी अजर मिलेगा। फिर उससे हमारी पूरी उम्मत की खिदमत है। यानी जो तसव्वुर इस वक्त ख़राब कर दिया गया है कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द होता है, और कुरान मजीद दहशतगर्दी सिखाता है। मुसलमान दहशतगर्द होता है तो उसके माने ये ले लिए हैं उन्होंने कि कुरान मजीद उनको दहशतगर्दी सिखाता है। तो ये इस जहन की तस्सीह होगी और बहुत बड़ी बात है। और जब जहन की तस्सीह हो जाएगी तो ये दुश्मनी जो है, ये मसनूई दुश्मनी जो पैदा हो गई है गैर मुस्लिमों और मुसलमानों में, ये दूर हो जाएगी। और वो लोग समझेंगे कि इस्लाम जो है वो इंसानियत का मज़हब है, इंसानियत को दुरुस्त करने के लिए आया है, और अल्लाह की किताब इंसान के लिए रहमत का ज़रिया है कि वो इंसान को सीधा रास्ते पर लाती है। तो ये हम तो बहुत दाद देते हैं इस बात की, और इज़हार क़दरदानी करते हैं, और आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए, और आपके ज़रिए से जितनी ज़्यादा हिदायत फैल सके ये कुरान मजीद को आम करने और उसको लोगों तक पहुँचाने के ज़रिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये आज यहाँ सलाम सेंटर आने की सआदत हासिल हुई, और आने से पहले हमको अंदाज़ा नहीं था। हम समझते थे एक छोटी सी लाइब्रेरी होगी और वहाँ मुताले का इंतज़ाम होगा और कुछ किताबें वहाँ तक़सीम होती होंगी जिनमें इस्लाम का तारुफ़ कराया जाता होगा। लेकिन यहाँ आकर जो हमने देखा उसके मुख्तलिफ़ शोबों को, तो हमको ताज्जुब हुआ और ताज़ा हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर शायद दुनिया में कहीं भी ऐसा काम नहीं हो रहा होगा। ये हकीकत में कुरान के ज़रिए इस्लाम की इशाअत का एक बहुत अच्छा इंतज़ाम है। इस सेंटर के ज़रिए कुरान से वाकिफ़ कराया जाता है। अभी जो हमने तफसील सुनी उससे मालूम हुआ कि लाखों आदमियों को इससे फ़ायदा हुआ। इस लिहाज से दावत का
اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے اس کی کامیابی کو تو ایک خاموش دعوت کی ایک تحریک ہے جو دل سے دل تک اس کا رابطہ ہے. اس کا ہم کو اندازہ نہیں تھا شمالی ہند میں خاص طور سے ہم کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں بنگلور میں اتنا بڑا سینٹر ہے. ہم اپنے بہت زیادہ مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی خدمت خاموش خدمت ہے جو انجام دی جا رہی ہے. تنظیم کی شکل میں نہیں ہے, اس میں کسی طرح کی سلبیت نہیں ہے, یہ صرف قرآن پہنچایا جاتا ہے اور قرآن پڑھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں. تاریخ میں جو ہم نے واقعات پڑھے ہیں اس کی مثالیں ابھی معلوم ہوئی کہ اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے. سلام سینٹر خاموش تحریک ہے جو دلوں کو متاثر کرنے والی ہے اور یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور جو لوگ خاص طور سے ہمارے بھائی حامد محسن صاحب جن کا یہ سلام سینٹر ہے, غالباً یہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام پر رکھا ہے. یہ نام انہوں نے جو رکھا ہے وہی ان کا پیغام بھی ہے. سلام کے معنی ہے پیس کے, تو گیا یہ پیس مشن ہے, خاموش پیس مشن ہے. امید ہے کہ ایک بہت بڑے انقلاب کا یہ باعث بنے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس میں اور زیادہ کامیابی ہو سب پیدا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس سینٹر کو اپنی کتاب کے اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ بنا اور اس سینٹر کو قوت عطا فرما اور اس کی خدمات کو قبول فرما. اے پروردگار یہ قرآن مجید کی خدمت حقیقت میں تیری رضا کے لیے ہے اور تیری ذات کے تعارف کے لیے ہے. پروردگار اس کو قبول فرما اور اس میں زیادہ فائدہ مقدر فرما اور جو لوگ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے جو باعث اجر بنا اور ان کو مقبولیت عطا فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.